the region that contributes just a little less than 1/3 of the total number of seats in all of Gujarat. The region that before the 2017 elections was racked by the Patidar Andolan protests. The region that actually had the Congress getting more seats than the BJP, and the BJP's tally sharply falling from 30 to under 20. And it is this region that could be very decisive in what the results are on the 8th of December. It is an area that is make or break for any party. The Saurashtra Kutch region contributes the largest chunk of seats to Gujarat Assembly, over 50 from this region alone. Understandably, it is also an area that has huge cultural diversities, a huge mix of castes, communities with seats that are urban, rural, or a mix of both. It is no coincidence then that both Narendra Modi and Rahul Gandhi have made Saurashtra seats one of the first few constituencies that they campaign at. And Arvind Kejriwal has already held a dozen roadshows here. So let's start with one of the most prominent seats of Saurashtra, that of Rajkot, believed to be a stronghold of the BJP. The Rajkot area has 4 main assembly constituencies in it, including Rajkot West, that was won by former Chief Minister Vijay Rupani in 2017. This time, not only was Vijay Rupani replaced as Chief Minister before the polls, he's also decided to sit out this election. Along with him, BJP has not given a ticket to any of its sitting MLAs from the Rajkot seats. How does that sit with the voters? One of the major planks that figure in elections is the issue of safety. Incidentally, this is one of the scenes that you will see in Rajkot. The place where I'm standing right now, it falls in Rajkot West. Interestingly, it's the seat from where Mr. Modi himself, Narendra Modi, first contested. And here, late into the night, you will see huge groups of people, entire families who come here and sit. आप लोग यहाँ को बैठे हुए हैं रात को, सेफ्टी का इशू नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अभी 11 बजे हाँ। सब आराम से बैठे फैमिली के साथ, विदाउट फैमिली भी गर्ल्स आके अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो क्या करते हैं लोग यहाँ, क्यों आते हैं रात को? थकावट दूर करने के लिए। हाँ। अच्छी ठंडी है, मजा आ रहा है, गप्पे करेंगे, बातें करेंगे। So lovely, what you'll see are these little stalls. There'll be students, there'll be families, there'll be a lot of women surprisingly sitting here well close to midnight. ये बताइए कि अभी यहाँ पे चुनाव का मौसम भी चल रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपको पसंद है? बीजेपी ही आएगी। क्यों? Because they've done a lot of things good for us and मोदी जी का विजन बहुत ही अच्छा है and we support him. आपको कौन अच्छा लगता है यहाँ पे, कौन सा? जी बीजेपी आएगी, हमें पक्का विश्वास है, क्योंकि मोदी जी का काम ही ऐसा है, कितना बदलाव किया है तो वही आएगा हमारी तरफ से। तो क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा जो कैंडिडेट भी हैं वो विजय रूपानी थे, उनको चेंज कर दिया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसकी वजह से नाराज हैं कि इतने टाइम से वो थे। सही बात। तो फिर आप किसको सपोर्ट करते हैं? तो वो तो विजय रूपानी, वो भी अच्छा था, और आने वाली पार्टी तो अभी तो कोई उसका अनुभव नहीं है, तो जरा ध्यान रखना तो पड़ेगा ही। इस चुनाव आपको कौन सी पार्टी सही लग रही है? इलेक्शन में तकलीफ तो होगी, कुछ नया रिजल्ट आएगा। हाँ, नई पार्टी आएगी, कोई भी कुछ मिक्स आएगा। अच्छा, हाँ ऐसा ही आएगा। पर आपको कौन सी पार्टी पसंद है? तो पार्टी तो गुजरात में तो अभी तो भाजपा का ही है। हाँ, आप बताइए। मुझे भी बीजेपी लग रही है अभी, क्योंकि सामने भी कोई ओपोनेंट है नहीं और बीजेपी ने अभी तक काम भी किया है, ग्रोथ भी अच्छी है। आप देख ही रहे कि रात को 12 बजे 12:30 तक लोग ही सेफ है और ग्रोथ। आप कह रहे हैं कि कोई सामने है नहीं, पर एक्चुअली इस बार ज्यादा लोग सामने हैं। अभी यूजुअली कांग्रेस बीजेपी होता है, इस बार आप पार्टी भी है, AIMIM भी कुछ इलाकों में लड़ रही है, तो किसी को चेंज मौका आपको लगता है? कुछ जगह पड़ रहा है, मे भी माइनॉरिटी आप आ सकती है, लेकिन कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मतलब कुछ चांस है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी से बीजेपी आने वाली है। आपको कौन सी पार्टी अच्छी है?
ऑब्वियसली बीजेपी, इसमें ऑब्वियस क्या है? ऑब्वियसली बिकॉज मोदी जी का जो विजन है, उसका एक गोल है कि मुझे यही करना है तो वो ही होगा, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अभी, तो बीजेपी आएगा श्योर। आप सोचिए कि अगर मोदी जी नहीं चलेंगे तो कौन देश चलेगा? कोई है ही नहीं सामने। मोदी जी में वो पावर है और किसी और के सामने है ही नहीं। मोदी नहीं तो कौन? अरविंद केजरीवाल? नो, इट्स स्टिल लाइक फाइन लाइक फॉर दिल्ली, बट फॉर होल कंट्री मोदी इज द बेस्ट। कौन पार्टी सही लगती है? मेरे को तो भाजपा सही लगती है। किस वजह से? सब वजह से, जहाँ रोड रास्ते का काम है, सभी स्कूल का काम है, या सभी सही तरीके से जवाब दे रहे हैं सभी लोगों को इसके बारे में, इसलिए। हाँ जी, बताइए आप। हाँ, वोट फॉर बीजेपी। वाई? हाँ, सौनो साथ, सौनो विकास, सौनो विश्वास, सौनो प्रयास। यहाँ पर आप क्या काम करते हो? ये छुट्टक मजदूरी करता हूँ तो भी बहुत अच्छा है। तो आपको क्या फायदा हुआ है, आप जो वोट फॉर मोदी बोल रहे हो? हाँ? आपको क्या फायदा हुआ लाइफ में? महंगाई बढ़ी है तो सामने कमानी भी बढ़ी है। अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं है कि महंगाई है, हमें प्रॉफिट भी बढ़ा है। अच्छा। और बाकी जो पार्टियां हैं जो मुफ्त का कह रही हैं कि बिजली देंगी, उनसे भी तो फायदा होगा? नहीं, वो कोई नहीं देने वाली, कहाँ से आएगा पैसा? ये गवर्नमेंट इतना यूनिट का भाव लेती है तो भी मान पूरा पड़ता है, वो कहाँ से लाएगा कि मुफ्त में देगा? आप बताइए किसको प्रेफर करते हैं? बीजेपी को, क्योंकि उनका काम अच्छा है और ऑनेस्ट पार्टी है वो, इसलिए। ऑनेस्ट पार्टी है, पर यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं कि बार बार लो लेवल करप्शन होता है, काम नहीं होता जब से मोदी जी सेंटर में गए हैं। वो तो पहले भी लो लेवल का करप्शन तो होता ही था, आज भी होता है और सब जगह होता ही है ना वो तो उसको कोई पार्टी अगर अल्टरनेटिव तो है ही नहीं ना, सबका पार्टी करती है। यहाँ पे दूसरे भी अल्टरनेटिव, वो भी तो वही कर रहे हैं अपनी जगह पे। Who do you prefer in this election? I am not very sure right now, but seeing from the things that have been that the Modi government has been doing in Rajkot right now, I think I'm inclining towards them right now. I'm inclining towards Bhajap right now. You are going to be a first-time voter. What are the other alternatives that you've considered? Here in Rajkot, I just heard about two parties governing. You know, it's Congress or it's either Bhajap. So seeing that, it's a seeing the gameplay, it's a fair share that Bhajap is more in the game right now. Congress has not shown much progress, especially in the years I've been conscious. I have not seen Congress doing anything that is considerable. Okay, Congress has done this, but Bhajap, I've heard things that they've done. The new bridge, the hospital chowk bridge that they've made, it's a good initiative. So I think, yeah. क्या है ना, आम आदमी पार्टी गुजरात में ज्यादा वर्क नहीं करेगी। मेरे ख्याल से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उधर मेरे ख्याल से ज्यादा है। हाँ, पर गुजरात में क्या है ना कि मोदी जिस टाइम से चीफ मिनिस्टर थे ना, उस टाइम से गुजरात के लोगों का झुकाव ज्यादातर भाजपा की ओर होता है। पर अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं भी हैं, तो फिर क्यों? अभी वो प्राइम मिनिस्टर है ना। हाँ, और गुजरात के लिए वो कुछ ज्यादा ही उसकी जो है विकास, उसका जो मेन एजेंडा है विकास का, वो गुजरात में दिख रहा है। बाकी स्टेट में नहीं पता है, पर गुजरात में वो विकास का तो थोड़ा 50% है ना, वो दिख रहा है गुजरात में। This may even be biased, but the Prime Minister being Gujarati is a boon for us. It's a boon for Gujarat. So, inclining towards him, it's also a big reason, that the Prime Minister he's Gujarati. So, so Gujarat will show more progress if he's the Prime Minister. So, that's another reason to incline towards the Bhajap government, yeah. That Rajkot votes for an emotional connect with Prime Minister Modi is hardly a secret by now. But not all is smooth sailing in this love story. Rajkot East promises to be a tough fight, with BJP going head-to-head with Congress's Indranil Rajyaguru. Rajyaguru is best remembered for having joined the Aam Aadmi Party a few months ago, only to switch right back to the Congress last month. Now, he is leading a spirited campaign in the seat that has a large Patel, Kohli and Muslim vote, talking about BJP's misrule and the corruption he claims he saw in Aam Aadmi Party from within.
If there is one seat in Rajkot where the Congress is creating a buzz, it is the seat of Rajkot East. In fact, it started creating a buzz a while ago when the candidate who is now fighting on a Congress ticket went to the Aam Aadmi Party, came back and now is putting up a fight against the BJP. आपका जो पूरा एपिसोड था, पहले उसी में बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया. क्यों आप आम आदमी पार्टी में गए फिर वापस आए? तो मुझे कहीं ये लग रहा था कि ये भाजपा की गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं हमेशा लोगों के लिए ही काम करता हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे आज एक गरीब ब्राह्मण नहीं रहने दिया. तो ये कांग्रेस में 27 साल से मैं कोशिश कर रहा था. ये नई पार्टी आई, मुझे लगा कि चलो ये बोल रहे हैं कि हम एकदम ईमानदार हैं, हम एकदम राष्ट्रवाद हैं, तो मैं वहाँ गया कि चलो वहीं से हो, लेकिन भाजपा नहीं चाहिए. एक माननीय वड़ा प्रधान श्री ने पूरी ऊपर से लेके नीचे तक एक झूठ का फैलावा करने की एक पूरी टीम बना ली है. तो मुझे लगा कि उनकी गवर्नमेंट ठीक नहीं है, गुजरात में ठीक काम नहीं करे. महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके पेपर फूटने की बात हो या पुलिस सिक्योरिटी की बात हो, कहीं पर कुछ ठीक नहीं है. ये लोग भी मान रहे हैं. तो मैंने सोचा कि आम आदमी सही, गवर्नमेंट बदलनी चाहिए. तो मैंने आम आदमी में गया, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि बिन भ्रष्टाचारी है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा था. वो बोल रहे हैं कि हम लोग वो तो पूरे झूठ पे ही खड़े हैं. वो मैंने देखा. जो वो ऑपरेशन लोटस था वो बिल्कुल सच नहीं था. मेरे सामने ही उसका प्लान किया और इम्प्लीमेंटेशन किया. अच्छा. गाड़ी में बैठ के केजरीवाल जी मनीष जी को बोलते हैं कि तुम ये बोल दो. तो मनीष जी ने प्रेस में ही जा रहे थे कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ बोल दिया. बहुत अच्छे मनीष. और बोलते हैं कि अभी 3 MLA को बोल दो कि कल वहाँ पत्रकार परिषद कर ले, कि वो हमारे पास आए थे. तो मैंने सोचा एक झूठे लोगों की गवर्नमेंट को हटाने के लिए मैं फंस गया, जो और झूठ लोगों के पास आ गया. 10 साल तो एक झूठी पार्टी ने बिगाड़े हैं देश के, और ये इसको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो और 10 साल बिगड़ेंगे. और पैसा कितना आता था, बिंद्रस्ट पार्टी है तो उड़ के भी पैसा आता था, ट्रांसफर होके भी आता था. अगर कोई सच्ची पार्टी है, कोई देता है तो चेक से देता होगा. तो चेक दिल्ली के अकाउंट में हो तो उसको यहाँ लेके आप ट्रांसफर करो, चेक से करो. आम आदमी पार्टी गुजरात में, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता था. तो ये सब मिला के मुझे ये भी जानने को मिला कि एक दिन केजरीवाल जी चिंता जता रहे थे कि भाई अभी कांग्रेस का वोट नहीं टूट रहा है, बीजेपी का ज्यादा टूट रहा है. मुझे पता चला कि ये कांग्रेस को डेंट करने आए, गवर्नमेंट बदलने नहीं आए. तो ये सब मिला, और बाद में जो कैंडिडेट्स उन लोगों ने तय किए तो इस प्रकार से किए कि वहाँ भाजपा को सहायता मिले. तो जो बी टीम हम बोलते थे उनको कांग्रेस में, तो वो बी टीम ही थी. वो मैंने जान लिया. तो मैंने सोचा चलो यार, मेरी सोच 32 साल तक जिस पार्टी में मैंने काम किया वो पार्टी ठीक है. कम से कम सब ये पूरे देश के लोगों को साथ में लेके लोकशाही लेके आई. 70 साल तक विकास किया. पहनने को चप्पल भी नहीं था और खाने 2 रोटी नहीं थी. पर ये बताइए, आप यहाँ से लड़ रहे हैं जहाँ पे राजकोट में बीजेपी का एक छत्र है. राजकोट की 4 सीटें बीजेपी के पास ही है. आपको क्यों लगता है कि आप जीत पाएंगे यहाँ से? तो मैं 12 में लड़ा, तब भी 4 सीट बीजेपी की ही थी, लेकिन मैंने मेरी सीट निकाल ली थी. देखिए, मैं इस पार्टी को प्रतिनिधित्व करता हूँ जो जिसने विकास किया. और दूसरी बात कि कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला लोगों से. हारते हुए भी हार सहती है, लेकिन अपनी बात नहीं छोड़ती है जो देश के विकास के लिए है. तो वो बात मुझे अच्छी लगी. पर एक चीज और, एक बार चल के आपको दिखाते हैं आपका जिस तरीके से पूरा कैंपेन मटेरियल है. अगर पूरा आदमी राजकोट में घूमे तो ऐसा लग रहा है कि एक ही सीट पर लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, वो कि आपकी सीट में. बाकी सीटों में कांग्रेस दिखाई क्यों नहीं दे रही? देखो,
हमारी पार्टी के पास करप्शन के पैसे ज्यादा नहीं है, बीजेपी के पास है। उनकी कॉरपोरेशन है, तो वो सब अपनी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। बिहार जैसा होने लगा है, बिहार सुधरने लगा है और यहाँ बिहार जैसा होने लगा है। पर एक चीज ये भी है कि यहाँ पर कोई भी बड़े नेता प्रचार करने नहीं आए हैं अभी तक। यहाँ पर सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री, आपके जेपी नड्डा, हिमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ सब आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। आपके लिए लोग प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके जो स्टार कैंपेनर्स हैं? देखिए, कल नड्डा जी आए थे, मेरे विस्तार में ही थे, 800 लोग थे। अच्छा। उसका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट आता है, 800 लोगों की सभा कर पाता है, लोग कितने नाराज है वो दिखाता है। तो और हमारा कौन बोल रहा है हमारा कैंपेन नहीं करेंगे? और यहाँ हमें कोई स्टार प्रचारक और भी आएंगे, अभी 10 दिन बाकी है, अभी इलेक्शन में टाइम है, सब आएंगे। राहुल जी खुद आ रहे हैं। फिर किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे? क्योंकि आप सड़क पे निकलिए तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई महंगाई है, पर ठीक है मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे। देखिए, ये प्रचार है, आप लोगों के माध्यमों के द्वारा मैनेज किया हुआ प्रचार है ये। आप सड़क पे निकल जाइए ना, आप खुद आदमी से पूछिए, आप तो ज्यादा आदमी से बात करते होंगे। देखो, ऐसा अगर मूंगफली वाला बोल रहा है कि हाँ ठीक है मेरी पगार भी बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है, तो अब उसमें क्या प्रचार बोल सकते हैं? देखिए, मुश्किल है, ऐसे बोलने वाले को तो कोई दिखाता नहीं है कि बाहरी तकलीफ है। मोदी जी का बोल रहे हैं, उसका दिखाई देते हो आप सब। तो वो अगर ऐसा होता तो 2002 से जब से मोदी जी गए, कांग्रेस की सीट कम नहीं हुई है, हर 5 साल में कांग्रेस की सीट बढ़ी है। और लास्ट टाइम हम 80 तक पहुंच गए थे, सिर्फ 12 सीट की कमी थी। तो हर बार हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार गवर्नमेंट होने जा रही है। और भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि आम आदमी को हमको डेंट करने के लिए लेके आए थे, लेकिन आम आदमी आज उसको डेंट ज्यादा कर रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर प्रभाव होगा? प्रभाव होगा, थोड़े बहुत वोट्स ले जाएंगे, लेकिन वो 33% हमारा होगा, लेकिन 66% वो बीजेपी का वोट तोड़ रही है। You had gone into the Aam Aadmi Party, then came back to the Congress and made very serious allegations about corruption. There are videos out of Satyendra Jain inside Tihar jail getting a massage. This is also being cited as examples of corruption. What do you have to say? See, we were telling, and now I am telling more on a bank, that they are a B team of BJP. आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी टीम? बीजेपी की बी टीम है। जहाँ भी सहायता की जरूरत पड़े, जैसे गुजरात में, पंजाब में तो भाजपा आ नहीं सकती थी, तो वहाँ सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे आम आदमी हैज कम एंड दे आर एक्चुअली दे वर प्रैक्टिसिंग इन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स in their all see what they were offering was muft denge. I told Mr. Kejriwal that we are talking only about muft. Let us also talk about how we'll develop Gujarat in 5 years. पर आपने यहाँ जब आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, आपने कहा कि आपने फर्स्ट हैंड देखा कि क्या करप्शन हो रहा है। क्या देखा? Lots of money coming in, I have seen. And their expenses, if they are uncorrupted. See, Congress also has governments in other states, but we don't have money to spend. They are spending so much money. Where they are getting from? Are they getting from BJP, or are they getting from their corruptions? And what are they doing? They are totally practicing as a B team. They don't want what big can be then this that they are giving guarantees. पर जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, आपके पास क्या सबूत है? क्या आपने कुछ देखा करप्शन का कोई सबूत? हाँ, वो तो मैंने बोला है ना कि मैंने देखा है। वो आए थे मेरे ही रिसोर्ट पे रुके थे। जब कौन? केजरीवाल जी और मान साहब दोनों आए थे, उड़ के आए थे। मैंने देखा तो कहाँ से आया, बोले ऐसे आया। तो ये सब तो क्या देखा? क्या पैसा देखा और क्या देखा, बहुत ढेर सारा। और उससे भी ज्यादा एक प्रूफ दे,
कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। आंगड़िया बोलते हैं जो मनी ट्रांसफर करते हैं, वो आंगड़िया में पैसे पुलिस ने पकड़ लिए और उसकी जांच हुई, और जांच में ये यहाँ से थोड़े डरे हुए भी थे, यहाँ लोकल लोग। तो आप कह रहे हैं कि आंगड़िया के रास्ते पैसा आ रहा है? बिल्कुल, वो तो आता ही था। इसमें से बचाने के लिए मुझे भी कहा था कि आप बचा लो। मैंने बोला भाई वो काम करने में नहीं करूंगा। आपको कैसे पता वो आम आदमी का पैसा था? किसी का भी हो सकता है। अरे पकड़ा गया, आम आदमी वाले यहाँ के जो इंचार्ज है वो मुझे बोलते हैं कि इसमें से बचाओ, तो उससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है? आम आदमी के कैंडिडेट के पास से पकड़ा गया, उसने स्टेटमेंट दिया कि हाँ मेरा पैसा है, तो उसमें जांच की गई, तो वो कनेक्शन दिल्ली तक निकल रहा था, लेकिन भाजपा ने उसमें फिर कुछ नहीं किया। तो ये आंगड़िया में क्यों पैसा आता है अगर वो बिन भ्रष्ट है? तो ये सवाल है। Interesting charges indeed. At a time when already there is a full-fledged war on the issue of corruption in Delhi, charges here being made by people who've been part of the Aam Aadmi Party, now in the Congress. The Congress is banking on a strong anti-incumbency and price rise to tap into voters' anger. But is it really resonating with that vote bloc? कौन सी पार्टी पसंद है और क्यों? भाजपा। क्यों? बस ऐसे ही, वो पानी का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, रोड की कंप्लेंट थी वो ठीक हो गई, भाजपा, इसलिए भाजपा को। आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? भाजपा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जैसे मतलब पहले तो लेडीज की सुरक्षा यहाँ पर बहुत बेटर है, और बहुत सारे रास्ते वास्ते सब अच्छे किए हैं, और मजदूर लोगों को काम बहुत सारा मिला है। पर जैसे कि लोग कहते हैं कि जब से महंगाई बढ़ी है तो सबसे ज्यादा लेडीज को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि घर के खर्चे बढ़ गए हैं। आपको तकलीफ नहीं होती कि भाई सरकार है भाजपा की और आपकी महंगाई बढ़ रही है? नहीं, महंगाई तो वो दे रहे हैं, तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ही ना। टैक्स लग रहा है तो अच्छा ही है ना, इसी हिसाब से तो सब लोग सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, और मोदी जी है तो मुमकिन है। आपको नहीं तकलीफ होती? गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल और गैस की तो प्रॉब्लम, महंगाई की प्रॉब्लम तो है ही, पर इस हिसाब से चलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कौन बेहतर लगता है सर इस वक्त? आप इधर के वोटर हैं, आपको कौन बेहतर लगता है? भाजपा। किस वजह से? सब कुछ पहले से अच्छा कर दिया है, सब कुछ, इसीलिए। अभी हम जब कैसे कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेडर्स जो हैं गुजरात में डरते हैं किसी और का नाम लेने से। क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ही बढ़िया है, डरते तो किसी से नहीं है। पर जीएसटी की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि वो टैक्स तो भरना ही पड़ता है हमको, वो बहुत ही अच्छा है, जीएसटी सब कुछ, टैक्स वगैरह। आप कह रहे हैं भाजपा। मेरे को दो चीजें बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है या क्या अच्छा हुआ है जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हैं? अरे सभी रास्ते बहुत अच्छे कर दिए हैं, कई सारे चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से भाजपा। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? आम आदमी पार्टी को ही अभी आना चाहिए। भाजपा कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है। कितनी महंगाई बढ़ गई, आज पेट्रोल का भाव देखो 94 रुपये हो गए हैं। पहले 2 रुपये बढ़ाते हैं और 3 बार बढ़ा देते हैं 2 रुपये, और 1 बार घटाते हैं 2 रुपये, और ऐसा बोलते हैं कि 2 रुपये घटा है। अभी एक बार आपको भी मौका देना चाहिए। दिल्ली में, पंजाब में आप काम देख ही सकते हैं, स्कूल कैसे बनवाई है उन लोगों ने, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, और अभी यहाँ भी आप आएगी तो 300 यूनिट वो जरूर देगी ही, और महिला को दर महीने 1000 रुपये उसके अकाउंट में जमा करेंगे आप वाले। आपको ही आना चाहिए। आपको सब कुछ पता है, आप आपके वर्कर तो नहीं हो? नहीं, आपका वर्कर नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? तुफैल। तुफैल, ये बताइए कि जब यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, महंगाई के बारे में पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोले? ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब भाजपा करते हैं और इसलिए सब भाजपा भी कोई वोट देते हैं, मगर कुछ नया करना चाहिए, आपको भी मौका देना चाहिए। किसी नए को मौका देना चाहिए। अंकल, आप यहाँ राजकोट के हैं? अभी आपको चुनाव में कौन पार्टी बेहतर लगती है? चुनाव में भारतीय जनता पक्ष अच्छा बढ़िया काम करता है, उसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं कि हम डोर टू डोर गए हैं, हमने सबकी मदद की है।
इंद्रनील राजगुरु। तो उसकी रीते वो बराबर है, वो भी बराबर है, पर अभी तो जो चलता है बराबर है, क्योंकि उसके हिसाब से कोई तकलीफ नहीं हुआ किसी को। बहुत बढ़िया काम है। क्या बढ़िया काम? वो जो विकास करता है अच्छा करता है, सब इंडिया वर्ल्ड में भी नाम निकाला है मोदी साहब ने, वर्ल्ड में भी नाम बढ़िया किया है, तो कोई काम उसमें कचास नहीं है। क्या वर्ल्ड में बढ़िया नाम? ना नारी इतना नाम बढ़िया किया है, सब जगह जाते हैं, घूमते हैं, और इंडिया को सब जगह पब्लिसिटी बढ़िया करते हैं। देखिए तुफैल अपना सारे ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ महंगाई बढ़ रही है, आपको दुनिया की पड़ी है। महंगाई तो सबको परेशान करती है, वर्ल्ड में भी है महंगाई, है खाली इंडिया थोड़ी है, वर्ल्ड में भी बहुत बड़ी महंगाई है, सब जगह महंगाई है। महंगाई कैसे नहीं? तो जेब से पैसा निकलता है तो दर्द नहीं होता? पर दर्द तो होता है, पर क्या करे, वो भी सहन करना पड़ता है। श्वास लेने से मान आदमी को जीना मिलता है, तो खाने के लिए सब करना पड़ता है। आप हाथ देखिए बताइए क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सबको भाजपा ही चाहिए। महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दो, मगर आना चाहिए मोदी जी। आने बताइए क्यों? सबको जीने के लिए श्वास चाहिए, खाने के लिए सब चाहिए, तो सबको जीना तो पड़ेगा। आप बताइए अंकल, आपको कौन बेहतर लगता है? ये तो जो सबको लगता है वही लगता है, क्या करे। अपना मन क्या है आपका? आपको कौन पार्टी सही लगता तो सब महंगाई को सब तकलीफ तो है ही, तकलीफ सबको, तो सबको लड़ती है। तो परिवर्तन चाहिए आपको? 3 पार्टी जो है परिवर्तन तो होता है, जो परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो 2 आगे बढ़ेगा। एक वो तो ये हमेरा ही है, हमेरा ही है, सब ऐसा ही करते हैं। तो कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर है? जो 3 पार्टियां हैं, भाजपा, आप और कांग्रेस। तो जो अभी तो कांग्रेस आए तो अच्छा વધારે है। कांग्रेस तो अनुभवी है, बच्चों की चलती है। अच्छा, ये कांग्रेस कह रहे हैं। टाइम्स नाउ अंकल, टाइम्स नाउ से है आप? हाँ बिल्कुल। आप बताइए अंकल, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको इस वक्त कौन सी पार्टी बेहतर लगे? मुझे तो पार्टी ऐसी लग रही है, ये गरीबों को लूट रहे, किसी को कोई पोर्टफोलियो कोई है ही नहीं, किसी को कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पैसे पे इंटरेस्ट है। गरीबी दूर कैसे की जाए किसी को नहीं आता। पार्टी बहुत सारी है, लेकिन सब अपना ही सोच रहे हैं। भला सबसे नाराज है तो वोट किसको दोगे? शायद नोटों का भी दो। भाजपा का आदमी हूँ, मेरे को भाजपा ही चाहिए सरकार में। हाँ, पर आपके तो दोस्त बता रहे हैं कि वो सब बकवास है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो क्या है, उसमें सब लोगों की सोच होती है, क्या कैसे करना है। जो वो मेरे दोस्त का उसका प्रॉब्लम होगा कुछ भी, तो वो उसकी तरफ से बोल सकता है। मैं तो भाजपा का आदमी हूँ, भाजपा से चाहता हूँ मोदी सरकार ही आएगी, और कोई सरकार आ ही नहीं सकती है। पर क्यों? क्योंकि उसके सब कुछ काम किया है मोदी। क्या काम किया? वो तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया। नहीं, सब कुछ काम किया ही है। अरे सब कुछ क्या? हाँ, वो जो ये पानी का प्रॉब्लम था वो नर्मदा का दिया, बिजली का दिया, और रोड रास्ता ब्रिज सब कुछ बना के दिया है। हाँ। राजकोट सिटी को, और स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ब्रिज बनाया, एम्स हॉस्पिटल दिया राजकोट को, सब कुछ दिया है मोदी सरकार। इसलिए आई ना, विजय भाई सरकार ही भाजपा वो की थी विजय ना। भाई थे ना। जब सरकार तो भाजपा की थी, तभी तो सब कुछ बना के नहीं, दिया है। विजय भाई नहीं होते तो यहाँ पे एम्स नहीं आती, वो फाइनल है। और विजय भाई की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो तभी हो सकता है ना। वो अभी भूपेंद्र भाई पटेल होते तो एम्स यहाँ पे नहीं आती, उसकी सरकार वो भाजपा नहीं की आती, है। वो फाइनल है। आपको कौन सी पार्टी लगती है? यहाँ पे 2 लोग हैं, कोई कह रहा है कि ये कुछ सिर्फ दिखावा है, कोई कह रहा है कि काम हुआ है। नहीं, फिलहाल तो आई पर्सनली थिंक दैट देयर इज अ प्रिटी स्कोप ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। 27 साल से ये लोग जो चिपक गए हैं, कहीं ना कहीं मैं पर्सनली एज अ सिविलियन आई एम पर्सनली फाइंडिंग सम एंटी इनकम्बेंसी, एंड आई एम पर्सनली सीइंग सम little bit of changes and some huge competition. So which party do you prefer? I wouldn't rate any particular party, but I would like to rate, and I would like to have, and I would like to see some tough competition. कंपटीशन तो होगा, बट पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? क्या आप कंटिन्यूटी नहीं चाहते हैं? तो 2 ऑप्शन है, या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कौन सी बेहतर लगती है आपको? I think one chance should be given to Congress also. ऐसी की बात है कि मैं कांग्रेस ही हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो पार्टी जो नेशनलाइज पार्टी थी, कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी और गुजरात में, क्योंकि उन्होंने एज एन ओपोजिशन काफी बढ़िया काम किया हुआ है। लोगों के मुद्दे राजभवन में, गांधीनगर तक पहुंचाते हैं। तो वी कैन पर्सनली सी कि दे आर फाइटिंग फॉर जस्टिस ऑफ द पीपल। तो जो लोग ओपोजिशन में बढ़िया काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एज अ सिविलियन, एज अ व्यापारी मैं सोचता हूँ कि ये लोग अगर रूलिंग पार्टी में आ जाए तो कुछ वन चांस शुड बी गिवन टू देम,
क्योंकि हमने 27 साल तक एक पार्टी को दिया। Rajkot East has a mixed population, which is why it has seen frequent changes. At present, of course, the BJP is the one which has an MLA in the Legislative Assembly from here, but the Congress is giving it its all. Also making the competition interesting is the Aam Aadmi Party as a third pole. आप बताइए यहाँ पर आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? सब लोग बीजेपी ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बीजेपी, क्योंकि सबको बिजनेस करना है। हाँ, पर अच्छी कौन सी पार्टी है? चलिए बोलिए जो भी, बट अच्छा कौन? पार्टी सब अच्छी है। हाँ। इंसान अच्छा होना चाहिए। पार्टी सब अच्छी है, वो अपने सिद्धांत पे चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी। तो कौन सा इंसान अच्छा है यही बता दीजिए। इंसान के ऊपर है। हाँ। बराबर। तो 3 कैंडिडेट में से कौन सा बेहतर इंसान है? 140 साल से अपना ही हिसाब चला रही है, उसका जो भी है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन वो पे चला रहा है। बीजेपी उसका रूल्स रेगुलेशन चला रही है। रूल्स रेगुलेशन सबके बराबर है, बराबर सीधा हिसाब है। इंसान अच्छा होना चाहिए। आपको कौन सी पार्टी ठीक? हमको तो कांग्रेस अच्छी लगती है। क्यों? उसका रोजगारी रहता है, उसने थोड़ी महंगाई कम रहता है। कांग्रेस ने जितने साल चलाया शासन उतने साल महंगाई कम रहा है। अभी भाजपा में बहुत महंगाई है, वो बेकारी भी है, बेरोजगार भी है। इसके लिए हम कांग्रेस पसंद करते हैं। आपको कौन बेहतर लगता है? कांग्रेस। किस वजह से? भाजपा वाला है ना, वो गोल से मारते हैं। कांग्रेस वाले खाली जेल लेते हैं, वो मीठा लगता है। जो कांग्रेस भाजपा वाले गोल लेता है ना, गोल से मार देते हैं पब्लिक को, गरीब पब्लिक को। पहले कांग्रेस ही आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी और कांग्रेस दोनों आएगी, भाजपा तो नहीं आएगी। दोनों पे तो बटन नहीं दब सकता ना। कौन सी बेहतर लगती है? 50% हुआ है, 50% हुआ कि भाजपा एक सीट नहीं आएगी। आपको कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर लग रही है? बीजेपी। किस वजह से? उसका काम अच्छा है ना, बढ़िया काम कर रहा है। रोड बोर्ड का और ट्रैफिक का काम चल रहा है। बीजेपी। वो तो कह रहे हैं कितनी महंगाई है कि यहाँ पर आदमी की जान निकल रही है। महंगाई तो सब जगह है ना। राजकोट में एक ही थोड़ी है, गुजरात में एक ही थोड़ी है, देश में थोड़ी एक ही है। फॉरेन में सब जगह महंगाई तो बढ़ाई है। सबसे यहाँ ऐसा है भारत में, तो सब दिख ही रहे हैं, इसलिए बीजेपी से है। आम आदमी केजरीवाल मोदी જોતો જ નથી। બીજું હોય મોદી મોંઘવારી કરી દીધી। કેજરીવાલ નું કામ સારું છે દિલ્હી બન્યા બધી। पर उनकी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी? बनेगी बनेगी। यहाँ पे। और कांग्रेस? कांग्रेस नहीं होगी। अब से अभी तो ये हमारे राजकोट में बहुत मोड़ चल रहा है कांग्रेस का। अभी तो कांग्रेस की बहुत, ये हमारे एरिया में कांग्रेस की बहुत जोर लगी रही है। पीछे कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी भी बेहतर है। नहीं, आम आदमी पार्टी का अभी कुछ ठिकाना नहीं है। अभी तो ये दो पार्टी से अभी टक्कर ले रही है, तो कांग्रेस और भाजपा। यहीं तो कांग्रेस का राज भी चल रहा है। वो पहले से एरिया कांग्रेस का ही है, वो विस्तार है ना, पहले से कांग्रेस का है। तो यहाँ पर वोट कैंडिडेट को पड़ता है या सिंबल को पड़ता है? कैंडिडेट की वजह से आप कांग्रेस पसंद करते हैं या सिंबल? दोनों। आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? मेरे को तो कांग्रेस ही अच्छी लगेगी। क्यों? मैं कांग्रेसमैन हूँ। हाँ। तो कांग्रेस ही अच्छी लगेगी। यहाँ का एमएलए अभी इलेक्शन लड़ रहा है ना, जो इंद्रनील राज्य गुरु, उस 2012 में वही लड़े थे और यहीं से जीत के गए थे। 2012 से 2022 तक अपना ऑफिस खुला रखा है और लोगों के काम करते हैं, और काम का मत उसको इंद्रनील को मिलेगा। पार्टी तो कांग्रेस ही बेहतर है। उसका जो विचार है पूरे भारत को जोड़ने का है, पूरे बिन सांप्रदायिक है, और वो उसका जो विचार से जो पार्टी चल रही है। अभी यहाँ का जो हमारी इलेक्शन है वो उम्मीदवार के बीच में ही चल रहा है। एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है, एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार। पर भाजपा क्यों नहीं? भाजपा का तो यहाँ पे एमएलए है अभी एमएलए है, लेकिन जो वो एमएलए था अभी जो उम्मीदवार को उसने टिकट दिया है वो कहीं न कहीं गलत दे दिया, ऐसा हमें लग रहा है। जो पहले वाला था उससे तो ये उसके कार्यक्रम में भी ऐसे चर्चा आ रहा है कि ये नहीं चलेगा। आपको अंकल क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है इस वक्त? कांग्रेस पार्टी बेहतर है। किस वजह से? कि जो उम्मीदवार है इंद्रनील राजगुरु, वो एकदम काम के आदमी है, और कोई भी ज्ञाति जाति देख के बिना कभी भी फोन करो तो वो हाजिर हो जाते हैं। तो आदमी तो लड़ रहा है पर पार्टी तो दिख नहीं रही यहाँ पे। नहीं, पार्टी दिख रही है, फुल दिख रही है। ये साइड बहुत अच्छा है इंद्रनील का, और वो पक्का विन होगा। If there is anger, Arvind Kejriwal seems to have capitalized on it more successfully, at least getting some recall value in people's minds.
Has the Congress then been too late to get off the blocks and suffered because of it? बहुत एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि कांग्रेस का प्रचार बहुत देर से शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्यों? कोई एलिगेशन की बात नहीं, पूरा देश जान रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं। देश में आज नफरत का माहौल है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और जिस तरह से डर और भय का वातावरण बना हुआ है, हमारे नवसंकल्प शिविर उदयपुर में पूरी पार्टी ने फैसला लिया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निकालेगी। तो ये हिमाचल क्यों नहीं गई भारत जोड़ो यात्रा? मैं कह रहा हूँ गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, एक बड़े उसमें देखिए संदर्भ में आप पूरे देश की समस्याओं को हाईलाइट कर रहे हैं। आज अगर अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम हो चाहे महंगाई, आम जो जरूरत की चीजें हैं वो चीजें आज आम आदमी को परेशान कर रही है। पूरे देश के मुद्दे हैं ये, उन मुद्दों को लेके अगर वो हिमाचल जाते हैं या गुजरात आते हैं तब भी उन्हीं मुद्दों पे जिक्र करेंगे। तो वो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में माहौल बना है, उसका असर गुजरात में भी आया, उसका असर हिमाचल में भी आया। सो फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात बीजेपी के पास है मोदी जी का खुद का चेहरा है, वो एक इमोशनल कनेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे वोट दो, डजंट नथिंग एल्स मैटर्स। कांग्रेस किस मैसेज के साथ जाएगी? देखिए, एक तरफ बीजेपी डबल इंजन की बात करती है और आप कह रहे हैं मोदी जी खुद की तरफ बात कर रहे हैं, तो या तो सिंगल इंजन की बात करनी चाहिए कि पूरे देश में चेहरा हर राज्य में चुनाव होगा, मोदी जी ही होंगे, या फिर यहाँ डबल इंजन की बात करना छोड़ दे। दूसरा इंजन का चेहरा तो यहाँ चुनाव के मैदान में है ही नहीं। तो दूसरा का क्या मैसेज है? दूसरा इंजन मिसिंग है गुजरात में, इसीलिए कोविड में 3 लाख लोगों की मौत हुई, इसीलिए लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, इसीलिए मोरबी का हादसा हो रहा है, इसीलिए ड्रग ट्रैफिकिंग का एपिसेंटर बन चुका है गुजरात, और इसीलिए यहाँ पर 5 लाख पद खाली होने के बावजूद 22 पेपर लीक हुए हैं, कोई भर्ती का काम नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट की जहां तक बात करते हैं, हमारे चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रो पुअर या मिडिल क्लास उन लोगों के लिए बने नहीं है। कौन जिम्मेदार है? तो ये इंजन तो इनका खराब हो चुका है यहाँ, तो डबल इंजन रहा कहाँ है? एक इंजन से देश को या हर राज्य को कैसे चलाएंगे उसके साथ? तो ये हर बार यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इनकी स्टेट लीडरशिप फेल हो चुकी है बिल्कुल। पूरा मंत्रिमंडल इनको बदलना पड़ा कोविड में, जब मिसमैनेजमेंट हुआ 3 लाख लोगों की मौत हो गई, ये इलाज नहीं दे पाए लोगों को। तो आज बचा क्या है यहाँ? मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज वोट मांगने आ रहे हैं, तो जब लोग संकट में आते हैं, परेशानी में होते हैं, उसका सोल्यूशन करने के लिए तब भी आना चाहिए, या वोट का ही रिश्ता है गुजरात की जनता से। Making a dent in urban areas, but it is the rural areas where the Aam Aadmi Party is making a concerted push, counting on getting the right candidates, many of them former BJP or Congress leaders. Let's do a dipstick of the rural mood as well. In the Limri area, the main caste constituency is Koli Patel, which is the maximum. Then you've got Kshatriyas, the Ranas, who's the candidate from the BJP, and then you've got other communities as well. But these are the main ones. लिमड़ी में अभी जो भाजपा है उनके विधायक हैं, पर यहाँ पर टक्कर 2 पार्टी में रहती थी, अब तीसरी पार्टी आ गई, आप पार्टी। तो क्या इस वक्त लगता है कौन आगे है? बस मैं तो कहता हूँ बीजेपी आएगी। पर क्यों? क्योंकि बीजेपी काम कर रही है, मोदी जी हैं, और सारा विकास है। और जो आप वाले हैं वो तो सिर्फ रेवड़ी बेचते, क्योंकि बस वो कह रहे हैं कि मुफ्त का सब देंगे। क्या मुफ्त का देंगे? कहाँ पे मुफ्त का क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है हम लोग। और जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो तो ले आए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी के सिवा और कुछ नहीं आएगा। मोदी जी ने जो विकास किया है ऑल ओवर इंडिया में, वही लाइक करेगा। क्यों? अगर आपके गैस सिलेंडर का भाव बढ़ेगा तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो मैम, भाव तो सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं बढ़े, सबके बढ़े। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, तो उससे बचत नहीं होती? मैम, वो तो बचत होती है, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना, उससे तो कई गुना वो तो आज आए हैं। और मोदी जी कब से है, और पूरे गुजरात में आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नाम चलेगा, बाकी और कोई नाम नहीं चलेगा। और अच्छा, ये बताइए यहाँ पर किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? जो लोकल मुद्दा है उस पर वोट पड़ेगा, कैंडिडेट के नाम पे वोट पड़ेगा, या फिर पूरे देश भर में कौन लीडर है उसके नाम पे वोट? नहीं, हमारा वो जो कीर्ति राणा है ना, वो सब छोटे से छोटे बच्चे को या कोई भी आदमी को वो ऐसे ही पहचानते हैं, दोस्त की तरह। और सब ऐसे बोलते हैं कि ये हमारा घर है, इसलिए कीर्ति राणा ही आएगा।
कौन सी पार्टी के? बीजेपी की। अच्छा, पर पहले तो कांग्रेस भी यहाँ पर स्ट्रांग थी ना, उनका भी जीतते थे। वो तो थी, लेकिन अभी तो क्या है कि ये स्ट्रांग हो गई है, हमारा घर जैसा है। हमारे कीर्ति राणा और भानुबा साहब वो सब हमारे एक फैमिली की तरह रहते हैं। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो आएगी और चले जाएगी, क्या करेंगे उसमें। आपको कौन सी पार्टी लगता है आगे? भाजपा। किस वजह से? हमारे गांव का विकास आप देखो, कहीं भी जाओ, रोड रास्ते पानी सब चीज की सुविधा है यहाँ पे। कोई फैक्ट्री नहीं है उनका, कोई किसी पार्टी का घुसने का। एक बार पहले कांग्रेस आके जा चुकी है बहुत बार, उन लोगों ने इलेक्शन जीतने के बाद फिर नाम पीछे खींच लिए थे, अगेन चुनाव हुए, तो उसकी वजह से अब इस बार तो कोई उन पे भरोसा करेगा ही नहीं शायद। अच्छा, पर जो नई पार्टियां हैं, आप पार्टी वगैरह, उन पे भरोसा? उन लोगों का अभी प्रचार अच्छा है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गुजरात में लोग बीजेपी के अलावा किसी और का नाम लेने से डरते हैं, पर चुपके से जाके वोट किसी और को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काम जो करेगा उसको तो वोट मिलेगा ही, काम नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि गुजरात में ऐसे मोदी जी का नाम से चलता है ना, तो लोग डरते हैं कि मैं किसी और का नाम ले लूं। नहीं, कैसा है, अभी हमारा कोई लोकल नेता है तो हम, हमारा कोई भी काम होगा तो हम तुरंत उनके पास जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर कोई लोकल और कोई पार्टी से आया ही नहीं है जो लोकल है, और अगर जीतने के बाद भी चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना कि उनको जिताने का। मौका देख के नए लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो भी तो लोकल है, आप पार्टी का नया नेता है, यंग नेता है। कौन है? मयूर साकरिया है लिमड़ी से, तो आम आदमी पार्टी से। जैसे ये चेहरा जाना पहचाना नहीं है। हम जानते हैं, कीर्ति राणा को जानते हैं कि ये जाना पहचाना चेहरा है, वंश परंपरागत चलता आ रहा है, उन लोगों ने सेवा भी की है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पार्टी से है ही नहीं जिनको हम जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो मुद्दे जो बाकी लोग बोलते हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, उसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, वो सब आपको फर्क नहीं पड़ता? वो तो है, लेकिन क्या करें, अभी ऊपर से ऐसे चल रहा है तो इसमें तो हमारी भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जो ऊपर से ऐसे ही चलता आ रहा है। ऊपर मतलब कहाँ भाई? सरकार से चलता आ रहा है ऊपर से। फिर भी आपको कोई नाराजगी नहीं है? महंगाई है पर फिर भी वोट दे देंगे? हाँ, वोट तो देंगे ही। क्यों? अभी ऐसा चलता है तो वोट देने तो जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन हम श्योर नहीं कह सकता कि वोट किसको हम देंगे। अनिल भाई, ये बताइए, यहाँ तो ऐसे कांग्रेस का कुछ माहौल ही नहीं दिख रहा है लिमड़ी के अंदर कि कोई चुनाव भी हो रहा है। आप कैसे कहोगे कि कांग्रेस का माहौल नहीं दिखाई देता? आप तो दिल्ली से अभी आए, 5-10 मिनट में आपको कैसे पता चल जाएगा? आप थोड़े दिन रुको तो आपको माहौल का पता चलेगा ना। अच्छा। ये सब मीडिया वाले सब यही सवाल करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम पड़ता कि ऐसे सवाल क्यों करते हैं। अच्छा। पूरे गुजरात में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। अच्छा। आप ऐसी बात क्यों करती है? पूरे रैली वाली कुछ दिखी नहीं यहाँ पर इतनी बड़ी। देखिए, रैली में तो क्या है कि अभी तो कल्पनाबेन मकवाणा ने कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी की है, उन्होंने उम्मीदवारी कलेक्टर कचहरी में दे दी है। अभी तो फॉर्म में परत खींचने का, कांग्रेस पार्टी का जो प्रतीक है प्रतीक देने का अभी तो ये काम चल रहा है। जब उसका सभी पार्टी का फॉर्म पास हो जाएंगे तब सभी पार्टी कंपेयरिंग करेगी न। और ये बीजेपी पार्टी तो पहले से आपको बीजेपी का आपका जो लगता है कि वो तो क्या है, वो सत्ता में है लेकिन विपक्ष का काम करती है, वो लोगों का काम करती नहीं है। बीजेपी पार्टी गुजरात में जब से 27 साल से आई है तब से जनता का काम नहीं करती, वो तो विपक्ष का काम निभाती है। नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया, लोगों को का जो काम करना है तो वो करते नहीं है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। आपको आम आदमी पार्टी से डर लगता है कि कांग्रेस का वोट काटेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी जीरो है। इसलिए जीरो है कि अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था वो बीजेपी के पास से पैसा लेकर किया था, और केजरीवाल और किरण बेदी ये दोनों अन्ना हजारे की टीम के दो ही मुखिया थे। और ये जो आरएसएस की टीम है, यही टीम ने जहां कांग्रेस पार्टी मजबूताई से लड़ रही है और मजबूताई से जिस राज्य में है वहीं पर बीजेपी पार्टी आम आदमी को भेजती है। लेकिन क्या है कि 27 साल से जनता बीजेपी से यहाँ आ गई है, थक गई है। इसलिए अब की बार गुजरात में 150 सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी और ये जो आम आदमी पार्टी है ना उसकी तो डिपोजिट चली जाएगी। यहाँ पर कौन पार्टी आगे लग रही है? यहाँ भाजपा। क्यों? क्या उसका काम बोल रहा है बेनिया,
ये तो कांग्रेस का दफ्तर आपके बगल में है। भले बगल में रहा तो भी दबदबा भाजपा का है, ये किरीट राणा का। पर किस वजह से उनका दबदबा है? उसका विकास है गांव में इसलिए, और सब छोटे मोटे सब जाति को साथ में लेके चलता है। एक विकास की चीज बताइए जो हुई है। ये सब हुआ, नया बस स्टैंड हुआ, देखो रेलवे स्टेशन अच्छा हुआ, ये ब्रिज बन रहा है। आम आदमी पार्टी से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आता है। आपके पार्टी जनता पार्टी आगे लगेगा, वो अच्छा काम है, वो सब विकास किया है। वो पहले बावर हुआ था, तो देखो बस स्टैंड से गिरिन चौक तक अच्छा लगता है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी नहीं आएगा इधर। क्यों? बस काम इन वो कार्यक्रम टूट गया है। वो पैसे लेते, साइला में पैसे दिया है 5 लाख रुपया। अच्छा। वो टिकट लिया है, चलेगा नहीं। वो सब लोग बोलते हैं। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी झूठा प्रचार करती है, हमारे खिलाफ ऐसे फैलाती है 5 लाख की। तो अच्छा है, हिंदू माटे अने चलेगी, आगे आएगी, अने बीजेपी सरकार आएगी। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कुछ फायदा होगा? नहीं, उसका कुछ पता नहीं। भाजपा से क्या फायदा है, या फिर सिर्फ सब लोग भाजपा करते हैं तो आप भी भाजपा बोल रहे हैं? भाजपा का काम अच्छा भी है। आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? जिंदगी में तो जैसे सब आवास योजना ये सब कर रही है, उसमें लोन मिलती है, उस भी ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर रहती है कांग्रेस और भाजपा की। कभी बदलाव लगता है आपको? हो सकता है थोड़ा वोट उधर खिसक सकता है? नहीं, यहाँ तो भाजपा भी आएगी, फिलहाल तो भाजपा भी आएगी यहाँ पर। आप जो फायदे बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल देंगे आपको, बिजली का, नौकरी का, उससे आपको नहीं लगता कि एक मौका मिलना चाहिए? मौका तो मिलना चाहिए वैसे भी, लेकिन यहाँ भाजपा का काम अच्छा है, इसलिए सब भाजपा को वोट ज्यादा देंगे। बताइए यहाँ पर किस पार्टी की हवा है? यहाँ 2 पार्टी की बहुत ज्यादा हवा है, क्योंकि यहाँ जो भीड़ है ना वो कोली की है, और भाजपा और कांग्रेस दोनों सीट उसी को ही मिली है, कोली को, इसलिए वो दोनों में से कोई भी। पर आपके जो यहाँ पर अभी विधायक हैं वो तो कांग्रेस के हैं। हाँ, वो भी कांग्रेस के है। काम अच्छा है उनका? उसका काम भी अच्छा है और उसका वोट भी अच्छा है। अच्छा। क्योंकि पहले जो वो शिक्षक थे, इसलिए वही ठीक है। वही ठीक है, कांग्रेस का ठीक लगता है। हाँ। कौन अभी पसंद है आपको, कौन लगता है सरकार बनाएगा? सरकार तो भाजपा वाले ही बनाएंगे। और यहाँ पे कौन जीतेगा? यहाँ तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, ऋत्विक भाई। अच्छा, तो यहाँ पे आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, बट सरकार किसी और की बनेगी? यहाँ हमारे व्यक्ति से हिसाब से चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन आगे है अभी? पार्टी कौन सी आगे है? आप बताओ, पार्टी के बारे में पता है आपको? नहीं। आपको क्या लगता है कौन पार्टी आगे? बीजेपी। कैसे बीजेपी? क्यों? क्योंकि काम बोलता है ना ज्यादा, रोड रास्ता सारा बनाता है, स्कूल बनाता है, आरोग्य हॉस्पिटल बनाता है, सब सारा बीजेपी वाला कर दिया। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए है, वो नहीं आएंगे? ओ, उसका भी सारा काम है, अच्छा काम है उसका भी, धारासभ्य भी अच्छा है। तो फिर उसको क्यों नहीं वोट दे रहे आप? काम करना है तो अच्छा, धारासभ्य भी अच्छा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी अच्छा है, पर थोड़ी ओला काम सरकार नहीं है ना यहाँ, आएगा पर थोड़ी बाहर लगी। पर थोड़ी देर बाद आएगा, उनको मौका देना चाहते हैं बाद में कभी? इसको भी बोल, काम देखेंगे। किसका? आपका? आप पार्टी का काम देखेंगे? हाँ, काम देखेंगे, बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे? कितने साल में सोचेंगे? अभी तो 5 साल तो बाद आएगा ना दूसरा इलेक्शन, तब सोचेंगे। An election that sees no major wave or overarching issue yet, Gujarat at the end of the day may well boil down to 3 main factors. The image of Prime Minister Narendra Modi being inseparable from Gujarat prevailing, the Aam Aadmi Party mopping up most of the anti-incumbency vote, and the Congress paying dearly for its will fight, won't fight strategy. With video journalist Gopal Dutt Sharma in Limdi, Padmaja Joshi for Times Now.
The News Hour at 10. We'll be right back after the break.